हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। Here you can see that Hamad is better off and Faizan is not worse off. So we are moving towards the equality of MRS, which must be same for both nations. So this is the condition for consumption efficiency. So at that point where MRS for two commodities between the two consumer is equal, at that point consumption efficiency prevail. यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं आप। Next topic, uh, next topic that we are going to discuss is production efficiency, mathematical derivation of or mathematical explanation of production efficiency. This is a source of upcoming lecture, chapter 1, microeconomic theory by Walters and Yard. These are the contents of this lecture: production efficiency, how we can drive it mathematically, and how we can go from inequality to equality. जिस तरह अभी प्रीवियस में हमने देखा था, एग्जाम्पल लिया कि इन इक्वल करके फिर इक्वालिटी की तरफ आए, इसी तरह इसमें भी करेंगे, इन इक्वल करके और फिर इसको इक्वालिटी की तरफ आएंगे। और प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ पहले कि प्रीटो एफिशिएंसी की हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कंजम्पशन एफिशिएंसी और दूसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और तीसरी प्रोडक्ट मिक्स, हम उनको मैथमेटिकली ड्राइव कर रहे हैं, मैथमेटिकली देख रहे हैं। So this is the second property of Pareto optimality, production efficiency. This is the supply side of the analysis, production analysis. Obviously, we need to find the best allocation of resources among the commodities. Best allocation of capital and labor resources among the two commodities X and Y. Remember that here are two factors of production, capital and labor, two commodities X and Y, and two consumer A and B. There are two factors of production, capital, labor. There is no wastage, means that all the resources are equally, all the resources are completely distributed, completely allocated among the commodities. Means you can say that no underutilization of resources, no unemployment, you can say that in simple words. We use the same Edgeworth-Box strategy to explain this production efficiency. So optimality has the first condition as below: MRTS, labor capital for X, commodity X, that must be equal to MRTS, labor capital for commodity Y. MRTS obviously marginal rate of technical substitution. दोनों commodities का जो MRTS है, that must be equal. This is the condition of production efficiency. एजवर्थ बॉक्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, सेम वही है। हमने जब ये प्रॉपर्टीज रीड की थी तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। आप वो मेरी वीडियोस भी अगर दोबारा चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं दोबारा। व्हाट वी नीड टू ड्राइव, सिंपली एक्स एल ओवर एक्स के, एक्स कमोडिटी एक्स, ठीक है, X is a commodity, Y is also commodity, L and K both are factor of production. Obviously X की प्रोडक्शन में भी लेबर कैपिटल दोनों यूज होते हैं, Y की प्रोडक्शन में भी लेबर कैपिटल दोनों ही यूज होते हैं। देखें हम चाहते क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी वहां पे होगी जहां पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर X commodity that must be equal to margin rate of technical substitution for Y commodity। और MRTS किसका इक्वल है, देखे ना, ये है XL ओवर XK, XL ओवर कमोडिटी X के लिए ना लिखा हुआ ये लेफ्ट साइड पे, XL ओवर XK
और इसी तरह ये वाई कमोडिटी के लिए ये वाई एल ओवर वाई के। और अगर आप इसे इलेबोरेट करना चाहें मजीद, एक्सएल इंटू प्रोडक्शन फंक्शन है ऑब्वियसली, capital used in the production of x, labor used in the production of x, divided by xk, capital used in the production of x, labor used in the production of x। सेम वे में इसको y को भी elaborate कर सकते हैं, YL x, x and labor used in the production of y divided by y capital, capital labor used in the production of y। So as per Edgeworth-Box isoquants are involved, uh, uh, MRTS is the slope of isoquant। ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, MRTS इज द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट्स। और ऑब्वियसली एक्स और वाई दोनों कमोडिटीज के जब आइसोक्वांट्स आपस में इक्वल होंगे, वहां पे जो है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी प्रिवेल करेगी। देयरफॉर लेट्स स्टार्ट विद देयर स्लोप्स एंड देन कंडीशन। ये आपके सामने कंडीशन मेंशन है, हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। We know that there are some basic concepts as here is the production function x, x is the function of कैपिटल एंड लेबर। जिसमें मैंने बताया कि एक्स की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज होंगे, वाई की प्रोडक्शन में भी कैपिटल लेबर दोनों यूज होंगे। तो हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। दिस इज द बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन, और ये बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन से ही डिराइव होगा। सो इफ वी वांट टू सी एनी चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन रिसोर्स एलोकेशन, वी मे यूज द टोटल डिफरेंशियल अप्रोच हेयर। ऑब्वियसली अगर आप चेंज देखना चाहते हैं और इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, और अगर आप चेंज देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सिंपल डेरिवेटिव नहीं, हमें टोटल डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। वी यूज दिस अप्रोच हेयर बिकॉज देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेबर एंड कैपिटल। सो टू चेक इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स इन अ प्रिसाइज स्टेटमेंट वी यूज टोटल डिफरेंशियल अप्रोच। Here is the total differential, ये x commodity, x is a function of capital labor, इसका हमने total differential लिया है। फिर dx is equal to MPL, marginal productivity of labor, obviously DTC over DL, DTC over DTC over DL, तो वो बन जाएगा DX, तो ये बन जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डॉट DL प्लस DTC ओवर DK, DTC ओवर DK, तो वो बन जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डॉट DK। दोबारा बोलता हूँ, जिनको टोटल डिफरेंशियल नहीं लेना आता वो जस्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ टोटल डिफरेंशियल की अल्फा सी चैंग, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बाय अल्फा सी चैंग से जस्ट एक दफा रिवाइज कर लें, टोटल डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, dx इज इक्वल टू, और ये एमपीएल की जगह क्या बोल रहा हूँ मैं, डी टी सी ओवर डी एल, तो वो बन गया एमपीएल, डायरेक्ट एमपीएल लिखा हुआ है डॉट डी एल प्लस डी टी सी ओवर डी के विच इज इक्वल टू एम पी के डॉट डी के। तो ये हमने सिंपली टोटल डिफरेंशियल लिया है, प्रोडक्शन फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल लिया है, एंड कीप इट इक्वल टू जीरो। नेसेसरी कंडीशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर एन आइसोक्वांट, बाय डेफिनेशन dx इज इक्वल टू जीरो। इस पहले टोटल डिफरेंशियल को इक्वल टू जीरो रखा है। इक्वल टू जीरो रखने के बाद आप एक को एक साइड पे ले जाएं, सिर्फ रीअरेंज किया है, ये रीअरेंज किया है, एक के साथ माइनस साइन लग गया है, देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप यू कैन गेट MPL over MPK, marginal productivity of labor divided by marginal productivity of capital, marginal product of capital, MPL over MPK, that is equal to minus DK over DL, minus DK over DL। दोबारा बता दूं, MPL over MPK is equal to minus DK over DL। जस्ट रीअरेंज किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हेयर यू कैन आल्सो गेट माइनस डीके ओवर डीएल दैट इज इक्वल टू एमपीएल ओवर एमपीके। सो एक्सएल दैट इज आल्सो इक्वल टू एक्सएल ओवर एक्सके। एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर which is x xl which is equal to xl and mpk which is equal to xk। सो सेम वे में आप देख सकते हैं MPL ओवर MPK, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, देखें MPL
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। खैर आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं एम पी एल ओवर एम पी के विच इज इक्वल टू एक्स एल ओवर एक्स के। सिमिलरली यही सेम प्रैक्टिस जो है वो हम वाई कमोडिटी के लिए भी कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट, दोबारा देख लेते हैं ताकि एक रिवीजन सी हो जाएगी। वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर बोथ, take total differential dy that is equal to dtc over dl, which is named as a marginal product of labor dot dl plus dtc over dk, which is equal to marginal product of capital dot dk. uh, dy is equal to 0, first derivative total differential cap equal to 0, therefore आप 0 को प्लग कर दें dy की जगह, mpl डॉट dl प्लस mpk डॉट dk, रीअरेंज कर लें, एक को एक साइड पे लेकर माइनस साइन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके सामने आ गया। सो एम पी एल ओवर एम पी के इक्वल टू वाई एल ओवर वाई के। वाई सिंपली इज द प्रोडक्शन ऑफ एल, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन है, वाई एल ओवर वाई के। हियर इज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहाँ पे प्रिवेल करेगी, जहाँ पे दोनों नेशंस के आइसो कमांड्स की जो स्लोप है वो आपस में इक्वल हो जाए। दोनों कमोडिटीज के लिए आइसो कमांड्स की जो स्लोप है वो आपस में इक्वल हो जाए। नाउ आफ्टर हैविंग द सेपरेट स्लोप for our two production functions x and y, we get the efficiency condition MRTS labor capital for x that is equal to MRTS labor capital for y। और जो अभी हमने फाइंड आउट किया एक्स एल ओवर एक्स के MRTS लेबर कैपिटल जो है वो हमने निकाला है एक्स एल ओवर एक्स के वाई एल ओवर वाई के, या आप कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये वाई के लिए होगा और ये एक्स के लिए होगा, वो भी लिख सकते हैं आप। सो द कंडीशन इज ट्रिक, it also tells us that these are factor allocation ratios in two different commodities। इस तरीके से जो है वो फैक्टर को एलोकेट किया जाएगा अमंग टू कमोडिटीज। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पॉइंट दोबारा पे है। एक्सएल मीन्स एम पी एल इन एक्स। ये सिंपली अगर आप यहाँ पे कहें कि ये एम पी एल की जगह वाई एल क्यों लिख दिया है, तो ये वही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। एक्सएल मीन्स MPL marginal productivity of labor in X, XK means marginal productivity of capital in X, YL means marginal productivity of labor in Y, and YK means marginal productivity of marginal product of capital in Y। तो ये यहाँ पे elaborate किया गया है। सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे प्रिवेल कर रही है, ये आपके सामने इक्विलिब्रियम है। लेट्स सी के या इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा। फ्रॉम इनइक्वालिटी टू इक्वालिटी, let's take an example। Here you can see that xl over xk that is greater than yl over yk means that mpl over mpk for x is greater than mpl over mpk for y। यही सिचुएशन है ना, अगर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो हम कैसे इक्वालिटी की तरफ जाते हैं, देखें। नाउ इफ वी हैव द अबव सिचुएशन, in this case we can see labor is more productive in the production of x, labor is more productive in the production of x। अगर आप याद करें ना, ये जो मैंने इंटरनेशनल ग्रेड में आपको बताया था, ये कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है, ये कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव है, ये वही चीज आएगी, देखिएगा। MPL over MPK यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, या ये देखें ना आपके सामने है, लेबर कैपिटल यूज्ड इन द labor capital ratio used in the production of x is greater than the labor capital ratio used in the production of y। So you can say that labor is more productive in the production of x, labor is more productive in the production of x, that's why left hand side ratio is higher। On the other hand,
कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव, और इसी का मतलब ये हुआ कि कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव इन वाई, बिकॉज अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एम पी के ओवर एम पी एल इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एम पी के ओवर एम पी एल इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, उस केस में क्या है, मैंने इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया। अगर नहीं करते तो इसी से भी विजिबल है, इसी इक्वेशन से भी विजिबल है कि वाई कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई, x is more productive in the sorry, labor is more productive in the production of x and capital is more productive in the production of y. So because x is because labor is more productive in the production of x, that's why left hand side is greater. जब x जब लेबर जो है वो x की प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट है, या आप कह ले, या आप कह ले कि लेबर इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, तो हम लेबर को ज्यादा हायर करेंगे एक्स की प्रोडक्शन के लिए। गौर से सुनिएगा कैसे हम इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। लेबर इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, सो हम ज्यादा लेबर हायर करेंगे, सो हम ज्यादा लेबर हायर करेंगे एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, एमपीएल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। जब लेबर को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लगाएंगे एक्स के लिए तो एमपीएल क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का अपर जो अपर वैल्यूज है एमपीएल, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। दोबारा देखिएगा, लेबर इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, so we will employ more labor for the production of x, and this will reduce the marginal productivity of labor in x. जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक्स में रिड्यूस होगी तो ये जो टर्म है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई, so we will hire more capital for the production of y, we will hire more capital for the production of y, so marginal productivity of capital will fall in y, mpk will fall in y। ये देखे ना राइट साइड पे देखे, mpk फॉर y जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये नीचे वाली टर्म कम होगी तो ये ओवरऑल ये जो टर्म है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस, ठीक है, दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मैं यही पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ जी। पूछे कुछ? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो एक्स कमोडिटी है इसमें लेबर सिर्फ ज्यादा यूज हो रही है कि कैपिटल दोनों ही देखिए, यूज इंटेंसिव है दोनों ना? हो रहे हैं, यूज दोनों हो रहे हैं, अच्छा कैपिटल लेबर, बट जी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। ठीक है। means that labor capital ratio used in the production of x is greater than the labor capital ratio used in the production of y। तो सिंपल इज डैट अगर एक्स में simply एल ज्यादा यूज simply हो रहा है तो वाई में के ज्यादा होगा। yes, of course, simply ओके labor is more productive in the production of x। अगर ये ग्रेटर है इसका मतलब ये देखे ना, अगर ये ग्रेटर है इससे, इसका मतलब ये होगा कि लेबर इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई। ओके सर। When labor is more productive in the production of X, we will employ more labor for the production of X. So marginal productivity of labor will decline in X. MPL decline होना शुरू हो जाएगी, ये वाली टर्म जहां पे कर्सर मौजूद है। On the other hand, when capital is more productive in the production of Y, so we will hire more capital for the production of Y. So MPK will fall, MPK। ये जब MPK फॉल करेगा तो ये वाली टर्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कम थी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो ज्यादा थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। until they reach at equilibrium, until they equate both terms same। ठीक है, यहां तक ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक ये दोनों कमोडिटीज के लिए ये
MPL ओवर MPK दोनों कमोडिटीज के लिए सेम ना हो जाए, या आप ये कह लें कि दोनों कमोडिटीज का जो MRTS है वो सेम ना हो जाए। और MRTS क्या है? स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। दोनों कमोडिटीज के जो आइसोक्वांट्स है वो सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस। इस तरीके से हम इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ आ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? जी स्टूडेंट्स, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।